بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام تعریفیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. 18,000 عالم بنا کر اس خدا نے ہمیں افضل المخلوقات بنایا. اس خدا کا احسان ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اگر میں آپ کو بولوں گا کہ آپ اپنے دوستوں کے بارے میں بتاؤ، آپ فٹافٹ بتاؤ. میں آپ کو بولوں گا جس چیز کا آپ جو کپڑا پہنے ہو، جو کون سی کمپنی کا برانڈ ہے آپ بتاؤ گے. آپ کون سی برانڈ کے شوز پہنتے ہو آپ بتاؤ گے. آپ مارکیٹ میں کدھر کیا چلتا ہے آپ سب بتاؤ گے. میں پوچھتا ہوں جس خدا نے آپ کو پیدا کیا اس خدا کے بارے میں تو کچھ بتائیے. کیا بتاؤ گے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہم جس کا کھار ہے، جس کا پیر ہے، جس کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اور جس کی دنیا چھوڑ کر ہمیں پھر اسی کے پاس جانا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیروں کو اور ولیوں کو آگے کیا. کہ اس کی جان پہچان کرانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیروں کی ذات کو آگے رکھا. پھر پیر ایسے ہوتے ہیں، مجھے تو نہیں معلوم پیر کیسے ہوتے ہیں، میں تو حقیر ہوں، میں تو بہت چھوٹا سا ہوں. پیر تو بہت بڑے ہوتے ہیں، میں تو غریب انسان ہوں، مجھے کیا پتا پیر کیسے ہوتے ہیں. مجھے تو اتنا پتا ہے کہ پیر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بندے کو خدا کے بارے میں بتاتے ہیں. جو بندہ جس کا ہے اس کو اسی کے پاس بھیج دیتے ہیں. فرض کرو کہ اگر آپ آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ میں بہت پریشان ہوں، تو آپ کی پریشانی لائے ہو میرے پاس. پیر حقیقت میں کون ہوتا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. حقیقت میں پیر وہ ہوتا ہے کہ جس کی آپ پریشانی جو لائے ہو، جو پریشانی آپ لائے ہو کہ میں پریشان ہوں، وہ جو پریشانی ہے نا آپ کی، پیر اسی کے بارے میں بتائے گا کہ یہ پریشانی آئی کہاں سے، اب جائے گی کیسے. پریشان ہو نا تو جانے کا بھی تو آئی ہے تو جائے گی بھی نا. جانے کا طریقہ، جانے کا راستہ پیر بتاتا ہے. اس کو کامل پیر کہتے ہیں. بابا نہیں ہوں میں کوئی بابا نہیں ہوں اور نہ مجھے کوئی بابا گیری. میں پاک صاف سلسلہ قادریہ چشتیہ لے کے چل رہا ہوں. میں پاک صاف، میرے غوث اعظم پاک، میرے رسول پاک، میرا اللہ پاک. تو یہ پاکوں کا سلسلہ مجھے خاکسار کو نصیب ہوا ہے، اس لیے تعلیم بھی پاک صاف دے رہا ہوں. کہ آپ میرے پاس آئے ہو، میں آپ کو گمراہ نہیں کروں گا، میں حقیقت بتاؤں گا، گمراہیت پہ نہیں ڈالوں گا. حقیقت یہ تو میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ نے جو اتنے پیارے محفل سجائی ہے، جس کی محفل سجائے ہو اسی کے بارے میں آپ جانیں. یہ محفل تو میرے خدا کی ہے. آپ بول بھی نہیں سکتے کہ آپ آئے ہو، اور آپ یہ بھی نہیں بول سکتے کہ آپ نے مجھے بلایا. سنیے، میں نہ خود آیا ہوں نہ آپ خود آئے ہو. میرا رب چاہتا تھا، ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہاں محفل ہو تو مجھے بلائے اور آپ کو سنا رہے. اللہ چاہتے تھے کہ آپ اس کی حمد و ثنا سنیں، اس لیے آپ کو بٹھا کے سنا رہے. کیونکہ آپ خود جو قرآن پڑھتے ہو، اسی قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اشارے کے بنا ایک پتا نہیں ہلتا. جب اللہ کے اشارے کے بنا ایک پتا نہیں ہلتا تو پھر آپ اور میں آ کیسے سکتے. تو پتہ یہ چلا کہ اس نے بلایا، اس نے سنایا اور وہ سمجھائے گا. کیا نام ہے بچہ آپ کا؟ ریحان، نہال. سبحان اللہ. اب اگر میرے کو یہ بچے کو آواز دینا ہے تو میں کیسے دوں گا، ذرا بتائیں گے. یہ بچہ سمجھو میرے آگے چل رہا ہے، مجھے اس کو آواز دینا ہے، کیسے دوں گا؟ مجھے اس کا اگر نام نہیں پتا ہے تو وہ الگ الگ قسم کی آواز لگا کے میں آواز دوں گا.
आप कोशिश, आप देखना ये चीज़ पे बराबर गौर व फिक्र करना। किसी को अगर आपको आवाज़ देना है और वो आपसे दूर है, आप कुछ लोग सीटी बजा के आवाज़ लगाते हैं, कुछ लोग अजीब अजीब आवाज़ लगा के उसको बुलाने की कोशिश करते हैं। वो सामने वाला बंदा पलट कर देखता भी है, वो देखता भी है। क्या बात थी उसके अंदर, ऐसी क्या बात पैदा हो गई उसके अंदर जो उसको बराबर पता चल गया कि आप उसे बुला रहे हैं। तो कोई तो ऐसा है जो उसके अंदर बैठा है, और कोई तो ऐसा है जो आपके अंदर बैठकर उसको आवाज दे रहा है। बस उसी के बारे में पीर की जात बताती है। मौत का कोई भरोसा नहीं, बैठे बैठे भी आ सकती है, चलते फिरते भी आ सकती है। तो जिस मौत को, जो मौत आनी है, उसी मौत के बारे में पीर बताते हैं, हकीकत से शनास कराते हैं पीर। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि पीरी मुरीदी में पीर होता कौन है, जरा ये तो बताएं, और मुरीद होता कौन है, जरा ये तो बताएं। तो पीर साहब को लोग बाबा समझते हैं, पीर साहब को लोग बाबा समझते हैं, और मुरीद को मुरीद बनना यानी अपने बाबा से मुरीद हो जाएंगे, अपनी परेशानी दूर। परेशानी दूर करने के लिए मुरीद बनो ही मत, उल्टा परेशानियों को गले लगाने के लिए मुरीद बन जाओ। जब हक बात बता रहा हूँ, परेशानी दूर करने के लिए मुरीद मत बनो, परेशानियों को गले लगाने के लिए मुरीद बन जाओ, क्योंकि वो परेशानी देने वाला खुदा है और वही परेशानी दूर करने वाला भी खुदा है। और पीर की जात वो जात होती है कि जिससे आप फिर गए हो। जरा सी परेशानी आती तो चाचा हम लोग क्या सोचते पता है, जरूर बाजू वाले ने कुछ किया होगा, उसने कुछ किया होगा, इसने कुछ किया होगा, रास्ते में उंगल में आया रहेगा, टिंगल में आया रहेगा, क्या बोलते हैं। मेरा कुरान ये जहालत नहीं मानता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए इसके लिए थे कि जहालत को दूर कर दिया। बात क्या है इसको समझिए। हकीकत जहालत मेरे सरकार दूर करने आए थे। आप मुझे ये बताएं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो ज़माना चला, आप जब मक्के में नबूवत का ऐलान किए, उस दौर से पहले का जो दौर था, आप ज़रा मुझे वो बताएं। तो पता चलेगा बुत परस्ती आम थी, पता चलेगा जादू टोना आम था, जुगा शराब खाने ये सब आम थे, बुराइयां आम थी। चेक करो क्या वो चीज आप में मौजूद है, और अगर वो तमाम की कोई भी एक चीज दौरे जहालत की कोई भी एक चीज अगर आपके अंदर मौजूद है, तो आप सरकार के उम्मती कहलाने के लायक नहीं हो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन तमाम चीज़ों को रद्द कर दिया। शराब, जुगारी, बुराई, चुगलखोरी और तमाम बुरी चीज़ों को मेरे सरकार ने मज़हब इस्लाम से दूर किया। और फिर भी अगर वो आपके अंदर मौजूद है तो जल्द से जल्द अल्लाह से तौबा करके वो तमाम चीज़ों को छोड़ें, क्योंकि मेरा खुदा जो है वो गफूरुर रहीम है, वो माफ़ करने वाला है। आप रात में सोने से पहले जब आप नींद में, गहरी नींद में चले जाते हो ना, उससे पहले भी मेरा खुदा, फरिश्ते ये कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये अभी गुनाहों की माफ़ी मांगेगा तो तुम इनको माफ़ कर देना। फरिश्ते लिखने के लिए तैयार बैठे हैं आपका गुनाह, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं रुक जाइए, अभी माफ़ी मांग लेगा कोई। तो कितना गफूरुर रहीम है हमारा खुदा, और हम सरकार के उम्मती हैं, रहमतल लिल आलमीन है हमारे सरकार, रहमतल लिल आलमीन, और उनके हम उम्मती हैं। तो जिनके हम उम्मती हैं, फकर से अगर हम कह रहे हैं कि हम उनके उम्मती हैं, तो उम्मती बन के दिखाएं। गुमान के साथ मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि क्या होता है। उसी तरीके से जब आप ये मान लेते हो ना कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, जब ये मान लेते हो ना, तब वो पूरा के पूरा आपका हो जाता है, मानने पर आपका हो जाता है। और पीरे तरीकत के लोग वो दीदार के लिए ही बैठे, वो दीदार की तलब में ही लगे रहते हैं, और दीदार की जुस्तजू, दीदार की इश्क में ही लगे रहते हैं। क्योंकि किसी बुजुर्ग ने कहा है, जो यहाँ का अंधा वो वहाँ का अंधा। यहाँ देख के जाओ, तैयारी इधर करनी है ना, यहाँ देख कर जाओ, वहाँ पास हो जाओ। अब एक चीज़ पूछने की इजाज़त हो तो पूछिए, कोई भी सवाल का जवाब दे सकता है। मुझे ये बताओ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको पैदा क्यों किया?
फरिश्ते कम थे क्या चाचा? फरिश्ते थोड़ी ना कम थे। अल्लाह की हम्दो सना करने के लिए फरिश्ते कम थे क्या? फिर आपको पैदा मुझे पैदा करने की अल्लाह को जरूरत क्या? There were many angels, but why Allah subhanahu wa ta'ala created us? Allah. वरती खूप सारे हे होते देवदूत, तरीही ईश्वरांनी हा स्वरूप घेऊन म्हणजे हा जिस्म देऊन का आपल्याला इथे पाठवला आहे धरतीला. इतने होने के बाद में भी वो खुदा ने हमें ये जिस्म देके दुनिया में क्यों भेजा? हमदो सना करना था, इबादत करना था, तो फरिश्ते कम थे क्या? हम तो नमाज भी बराबर नहीं पढ़ रहे, टूटी फूटी पढ़ रहे, जब वक्त मिल रहा तब पढ़ रहे, सही पढ़ रहे गलत पढ़ रहे वो भी नहीं मालूम. वो फरिश्ते तो 24 घंटे अल्लाह की इबादत में थे. फिर क्यों पैदा किया? क्या चाहता था हजरत इंसान हजरत आदम से? वो बस यही अगर आप सोच लोगे ना, अल्लाह अल्लाह बेड़ा पार, तो आपको पैदा करने का मकसद अल्लाह आपको समझ में आ जाएगा कि अल्लाह ने आपको पैदा क्यों किया. सिर्फ पैदा करने का मकसद समझाना चाहता हूँ. आगे की तो बातें बहुत हो गई. जब हमारे औलादे होती है तो हमारे भी कोई एक्सपेक्टेशन होते हैं, हमारी भी कोई उम्मीदें होती है ना कि मेरी औलाद मेरे लिए कुछ तो करेगी, कुछ तो करेगी मेरी औलाद मेरे लिए. मैं बहुत काम कर रहा हूँ, थक गया हूँ, थोड़ा वो बड़ा हो जाएगा तो मेरे लिए कुछ तो करेंगे. तो खुदा ने भी तो कुछ सोचा होगा ना आपके बारे में. इबादत के लिए तो फरिश्ते तो मौजूद थे इबादत के लिए. फिर आपको क्यों पैदा किया? आपको मुझे क्यों, हजरत आदम को क्यों पैदा किया? इबादत ही करवाना था तो उनसे करवा ही रहा था वो. फिर इबादत के बदले में क्यों इंसान को पैदा करना था? फरिश्ते तो मौजूद थे. और हमको क्यों पैदा किया? तो समझना पड़ेगा तुम्हारी पैदाइश का मकसद. कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, क्या तू गौर फिक्र नहीं करता कि तुझे मैंने क्यों पैदा किया? बस मैं उसी मुद्दे पे आपको ला रहा हूं. तो क्यों तुम गौर फिक्र नहीं करते कि उसने तुम्हें क्यों पैदा किया? तुमने तुम्हारी औलादों से एक उम्मीदें रखे, तो खुदा ने भी तो आपसे कोई उम्मीद रखा होगा, हालांकि वो उम्मीद नहीं रखता जैसे कि उसकी शान के लायक है. लेकिन फिर भी आपको पैदा करने के पीछे एक मकसद है. वो मकसद ही बताते हैं पीर उसी रास्ते पे आपको चलाने की कोशिश करते हैं. वो मकसद बताकर आपको अल्लाह के जानिब मोड़ते हैं. वो मकसद याद दिलाने की ड्यूटी दी गई है पीरों को. सब्र पैदा करवाता है आपके अंदर, आपको बताता है कि सब्र करो. आपको बार बार अल्लाह के बारे में जुस्तजू में लगाकर आपको खुदा के इश्क में लगाता है. ये पीर की ड्यूटी होती है. जरा एक सांस तो लो आप लोग, लो जरा एक सांस लो, खींचो, थोड़ा सा योगा करके देखेंगे. देखो अब मुझे ये बताओ, क्या ये सांस में अल्लाह का जिक्र था? तो मुर्दे हुआ. प्रैक्टिकल बता रहा हूँ. थोड़ा सा योगा भी करके देखना चाहिए कि नहीं? तो पता क्या चला, जो सांस तुमने लिए उसमें अल्लाह का जिक्र नहीं था. और हदीस मुबारका है कि जो सांस अल्लाह के जिक्र के बिना निकले वो मुर्दा. अब आप मुझे ये बताओ कि आप अल्लाह के नजदीक जिंदा हो या मुर्दा हो? यूं तो जिंदा हो, लेकिन अल्लाह के नजदीक आप जिंदा हो कि मुर्दा हो? बताइए बताइए. तो जिंदा कैसे बनोगे? तो शायद अंधेरा है वो कब्र का घर, डर लगता है मुझे. तो पता ये चला कि एक फकीर का करम हो गया, मेरे गौसे आजम का करम हो गया मुझ पर. उन्होंने मुझे अपनी निस्बत में लेकर, एक पीर मिले थे, भला हुआ चंगा हुआ जो मिल गए वो, उन्होंने मुझे मुरीद बनाकर मुझे ये बता दिए कि अगर यहाँ रोशनी आ गई तो तेरी कब्र में भी रोशनी आ गई. क्योंकि कब्र में, सुन लो अंधेरा सोचने वालों, कब्र के बारे में सुन लो, क्योंकि कब्र में जिसका दीदार होने वाला है वो नूर है. कब्र में जिसका दीदार होने वाला है वो नूर है, वो नूर के है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स दिखाने वाले हैं फरिश्ते कब्र में. तैयारी करना है इधर, वो एग्जाम होने वाला है कब्र में. पूछने के लिए फरिश्ते पूछेंगे कि कौन है ये, उसकी तैयारी इधर करना है. वो जवाब देने के लिए इधर तैयारी करना है.
تو تیاری کرنے کے لیے وہ کون ہے اس کے بارے میں بتانے کے لیے ایک رہبر کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ رہبر کے بنا آپ تیاری نہیں ہو سکتی.